السلام علیکم. سی ڈی 21 کی الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات ہم کر رہے ہیں الیکشنز کو لے کر. ہم نے دیکھا کہ ہم 6 بجے کی ٹرانسمیشن میں بات کر رہے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور ابھی ہمیں جو ہے وہ جیسے ہی ہماری ٹرانسمیشن ختم ہوئی اس کے بعد ہم نے ٹی وی اسکرینز پر دیکھا کہ کراچی کے علاقے گلشن میں جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے. دیکھنا یہ تھا کہ جیسے میں اور سعد بھی بات کر رہے تھے, سعد ایک دفعہ پھر سے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں, اس لیے میں نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا. سعد, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی, جیسے میں بات کری تھی کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار حارث نواز صاحب, لیکن سچویشن ذرا تھوڑی سی مختلف ہمیں ہمیشہ سے نظر آتی ہے. اب اگر بات کر لی جائے سیکیورٹی کی, اس کے بعد انتخابی مہم کی, اور آگے پیچھے ہم نے تمام تر چیزیں دیکھی کہ کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا گیا ہے, تو اب اگر الیکشن کمیشن کی بات کریں تو اس وقت جو ہے میرے ساتھ ہارون خان صاحب موجود ہیں جو کہ ڈی جی الیکشن مانیٹرنگ کنٹرولر ہیں, تو ان سے بات کر لیتے ہیں کوئکلی, اور اس کے بعد پھر سعد بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کا. جی شکریہ. ہارون صاحب, مجھے بتائیے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, ان انتخابات کو کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان پچھلے 1 سال سے انتخابات کی تیاری کر رہا ہے, اور ہمارے تمام سسٹم جو ہیں وہ بالکل سیٹسفیکٹری حالت میں ہیں. تمام ٹیمیں جو ہیں وہ مانیٹرنگ کی ٹیمیں بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, سیکیورٹی کے بھی انتظامات بھی ہیں. آج بڑا اہم دن ہے کہ آج پولنگ مٹیریل اور پولنگ سٹاف جو ہیں وہ 90,500 اراؤنڈ پولنگ اسٹیشن پہ جا رہا ہے, وہ کام بھی تسلی بخش طریقے سے ہو رہا ہے. آج رات ہی کو پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ قائم کر دیے جائیں گے, اور تمام اس میں جو مناسب اقدامات کرنے ہیں سیکیورٹی کے جتنے ٹیئرز ہیں وہ تمام ہمارے انٹیکٹ ہیں. اور الیکشن کمیشن مکمل مطمئن ہے اور قوم سے یہی اپیل کرتا ہے کہ آپ صبح 8 بجے سے پہلے آ جائیں, اور اپنا آنے سے پہلے آج ہی رات 8300 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر بیچ کے اپنا پولنگ اسٹیشن ابھی سے معلوم کر لیں, کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں, چونکہ میں اس وقت کمپلینٹ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہوں, مانیٹرنگ سینٹر الیکشن کمیشن میں, تو لوگ صبح پھر پوچھتے ہیں اپنے پولنگ اسٹیشنز کا. تو سب سے یہ گزارش ہے کہ ابھی 8300 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر وداؤٹ اسپیسز بھیج دیں, آپ کو پولنگ اسٹیشن کی لوکیشن مل جائے گی اور مل جائے گا. تو یہ اپنا اوریجنل شناختی کارڈ لے جائیے, اگر وہ زائد المیعاد بھی ہو تو وہاں پہ اس پہ ووٹ ڈالا جا سکتا ہے, فوٹو اسٹیٹ پہ یا کسی اور کاغذ پہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو یہ ضروری ہدایات ہیں. اس کے علاوہ پریزائڈنگ افسران کو بھی ہم نے ہدایات دیے ہیں کہ وہاں پہ جو پولنگ اسٹیشنز پہ جتنے بھی کل ہوں گے شام کو جب رزلٹ تیار ہوگا, تو ای ایم ایس سسٹم کی آپ نے بات کی ہے, تو ای ایم ایس ایک بہترین سسٹم ہے. اس میں بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ پریزائڈنگ افسران کو جو شام کو ہدایات گئی ہیں دوبارہ, وہ یہی ہے کہ جتنے بھی پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں مختلف امیدواروں کے, سیاسی جماعتوں کے, آزاد امیدواروں کے, تو وہ چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ. تو شام کو جب فارم 45 پریزائڈنگ افسر رزلٹ بناتا ہے فارم 45 پہ, تو اس میں یہی قانون ہے اور یہی ہدایات دی گئی ہیں کہ تمام پولنگ ایجنٹس کے ان پہ سائن دیے جائیں, اور پریزائڈنگ افسر کے اس پہ سائن ہو, سب کو اس کی کاپی ملے, وہاں پہ جتنے مبصرین ہیں, اور پھر کنسرن پولنگ اسٹیشن کے باہر اس کو چسپاں بھی کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ ای ایم ایس سسٹم جو ہے یہ ایک سادہ سا نظام ہے جس میں وہ پریزائڈنگ افسر موبائل سے اس کی تصویر لے گا, تو اس پولنگ اسٹیشن کے جیو کوآرڈینیٹ, اس کی لوکیشن اور اس کا ٹائم کتنے بجے وہ رزلٹ لیا گیا, تو وہ سارا آ جائے گا اور الیکٹرانکلی یہ ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچ جائے گا. تو دیکھیں اس میں لوگ جو ہیں اس کو کلیئرٹی لے لیں کہ ریٹرننگ افسر ہر حلقے کا ایک ہوتا ہے. تو پاکستان میں اس وقت جو ہیں 859 ریٹرننگ افسرز ہیں, تو ان کے اپنے اپنے حلقے ہیں, تو ہر حلقے میں پولنگ اسٹیشن 200 سے 250 سے 400 تک ہیں. تو ریٹرننگ آفیسر ایک جگہ پہ ہے تو مختلف پریزائڈنگ افسر سے فارم 4500 سے آ رہا ہے, جو اس نے رزلٹ فارم 47 پہ مرتب کر کے ٹیبولیشن کر کے پھر اناؤنس کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ رزلٹ ہے جو ای ایم ایس سے بھی تیار ہوگا, لیکن پریزائڈنگ افسران قانون کے مطابق جب وہ موبائل سے بھیجتے ہیں اس ای ایم ایس سسٹم کے ذریعے, تو سیکشن الیکشن ایکٹ کے تحت وہ پابند ہے کہ وہ سارے فزیکلی بھی جمع کرائیں گے. یہ تو یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ ہارون فزیکلی صاحب, نہیں آئیں گے. جی ہارون جی جی صاحب جی جیسے آپ بات کر رہے ہیں, آپ بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے ایپ کام کرے گی. مجھے بتائیے گا کہ اگر ایپ صحیح طریقے سے استعمال ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ریزلٹس جلدی اناؤنس ہو جائیں گے, کمپائل جلدی ہو جائیں گے, دھاندلی کے چانسز کتنے % کم ہو جائیں گے اس سے؟ دیکھیں میری بات سنیں, دھاندلی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ دھاندلی کی کوئی آرگنائز اس طرح کوئی شکل آئی ہو. باقی ہمارے ملک کا سیاسی کلچر ہے کہ یہاں صرف جیت ہوتی ہے, ہار
कोई नहीं होती, वो धांधली हो जाती है। इलेक्शन कमीशन के तमाम आप देख लें जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं आज तक, वहाँ पे 2013 के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें भी कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग का सुप्रीम कोर्ट की उसकी पूरा काउंसिल बना था, दी देन चीफ जस्टिस का, उसमें पूरा जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनी थी पूरी तफसील से, तो उसमें कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं थी। उसके बाद तो ये हमारी तरफ ये कल्चर रहा है कि ये धांधली के इल्जामात लगाते रहते हैं। तो बाकी हमारे सिस्टम्स पे इस पे जो है कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग किसी भी वक्त पे ना हुई है ना होगी, और ना हम उसको करने देंगे। हम एक्शन लेंगे। कल ज़ाब्ता इखलाक कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक पोलिंग, आज कैंपेन कोई नहीं चल रही, कल पोलिंग होगी, और जो भी पोलिंग में कोई मुदाखलत करेगा या किसी को रोकेगा या पोलिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेगा तो इलेक्शन कमीशन अपना रास्ता लेगा। और आप याद रखें कि ये वो इलेक्शन कमीशन है जो माजी में भी लोकल गवर्नमेंट और बाई इलेक्शंस में बड़े बड़े डिसीजन ले चुका है। कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, और हम एक्शन से लेते हैं कानून को देखकर, और हम जरूर लेंगे जो भी इसमें खलल डालेगा। अच्छा हारून साहब, मैंने एक सवाल करना है आपसे। ये जो आप ईएमएस की बात कर रहे हैं, हमें पता चला कि खतीर रकम इसके ऊपर जो है वो खर्च हुई है। ये कब आप लोगों ने इस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया है आवाम को? 1 महीना हुआ, 15 दिन हुए, या काफ़ी पहले से ये अनाउंस हो चुका था कि इस दफ़ा जैसे पिछली बार आरटीएस था, इस दफ़ा ईएमएस आ रहा है? देखिए, पिछली मरतबा जो आरटीएस था वो भी अपने मुकर्रर वक्त पर बताया गया था, और जो ये मेस है यहाँ पे जो इस्लामाबाद में जितने भी मीडिया हैं उसको कवर करता रहा है, और ये मेस पे हमारी काफ़ी ब्रीफिंग्स भी हो चुकी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एकदम नई चीज़ आ गई। इसकी जो पायलट मशकें कराई गई हैं 5 डिफरेंट लेवल्स की, तो उस मशकों में भी हम पूरा मीडिया को, यहाँ सारा बीट मरकजी मीडिया हमारे पास था, आज भी उनको विजिट कराया गया, उसकी काफ़ी टिकर्स भी चले हैं, वीडियोस भी चली हैं, और इलेक्शन के रिजल्ट प्रोसेसिंग का ये बुनियादी एक सिस्टम है जिसमें जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बड़ी सेफ है, और हम इसमें इंशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो है प्रॉपर रिजल्ट टाइम पे देगा। और अगर उसमें मैं वजाहत कर दूं कि अगर आप इस ये मेस के जरिए या उसके जरिए उसमें कोई मसला भी आता है कनेक्टिविटी का, जहाँ पे मतलब ऐसे केपी में हमारे इलाके हैं, या सदरन केपी में है, नॉर्थर्न केपी में है, बलूचिस्तान में, तो वो तो आप देख लें उसमें वो ऑफलाइन मोड पे काम करेगा, और उसमें उसके कोऑर्डिनेट्स उसकी वो आ जाएंगे। आपको अभी याद हो कि पिछले साल डस्का का एक इलेक्शन हुआ था जिसमें 20 प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए थे धुंध में, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी की और सबको सजाएं दी। उसमें तमाम जो हैं डीआरओ आरओ जो जितने एग्जेक्टिव के ऑफिसर्स थे उन सबको जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की। अब वो कोर्ट में चले गए, तो कमीशन किसी ऐसी धुन को अब आने नहीं देता, और कमीशन एक्शन लेता है। डस्का में सबने देख लिया कि हमने कितना भरपूर उस पर एक्शन लिया है, जो भी उस पर कल्प्रिट्स थे। बिल्कुल तो ऐसा ही। हारून साहब, क्विकली आपसे मैं सिर्फ एक बता दूं, ये एमएस इंश्योर करेगा कि उनके जो लोकेशंस हैं उसी पोलिंग स्टेशन के हैं जहां पे वहां से उनका अलॉटेड पोलिंग स्टेशन है, और उसका टाइम भी नोट हो चुका है। जी, अब आप सवाल करें। मैं आरुण साहब ये कह रहा था कि अभी दौरान गुफ्तगू ही 2 खबरें मेरे पास आई। आप बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनाइज कोई धांधली होती हो, मतलब एक माजी तो हमारा तल्ख रहा है, कुछ सियासी कल्चर जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे। पर अभी 2 खबरें आई कि केएमसी के एक ड्राइवर को जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया है, और उसने अपना शिकायती बयान वीडियो पे जो है वो जारी कर दिया कि जनाब मैंने उन्हें बताया भी कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, ड्राइवर हूँ, मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने जहाँ भी पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं वहाँ कैमरास लगे हैं, सीसीटीवी लगे हैं। तो आज कराची के कुछ अमले की चीज़ें वहाँ से चोरी हुई, जिनमें सरे फहरिस्त एक मोटरसाइकिल चोरी हुई, और जब उस बेचारे ने ये कहा कि जनाब आप जूम करके देखें तो पता चला वो कैमरे ही ब्लर थे। तो ये शिकायत भी आपके इल्म में आई होंगी दोनों? ये बिल्कुल हमारी इल्म में आई है। इस वक्त हमारी 1200 जो हैं वो मॉनिटरिंग टीमें फील्ड में हैं, 144 डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान फील्ड में हैं, और ये इसकी जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, ये इसकी कमीशन आज दोपहर को तहदीद कर चुका है। आप हमारे वेबसाइट पे देख लें। इस तरह की फेक न्यूज़ चलती रहती हैं, और आवाम से ये गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन की मुस्तनद वेबसाइट है, उसके अपने स्पोक्स पर्सन है प्रोविंशियल लेवल के, हम इसकी तरदीद जारी कर चुके हैं। बाकी मैं बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया का आबादी का 5वां बड़ा शहर है, 5वां बड़ा मुल्क है। तो कल जो इलेक्शन है तो आप देख लें कि 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स के साथ हम जा रहे हैं,
तो इसमें आप देख लें कि इसमें छोटी मोटी चीजें जो हो रही हैं उसको हम देख रहे हैं। ये पूरा अभी आप अगर जूम पे मैं आपको दिखा दूं, पूरा ये हाल भरा हुआ है, पूरे 180 कंट्रोल रूम्स पूरे मुल्क में इस वक्त काम कर रहे हैं 24/7। घर में शादी की एक तकरीब होती है, 400-500 लोग आप बुलाते हैं और उसमें भी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, लोग खफा हो जाते हैं। तो कल 13 करोड़ लोग निकलेंगे, बहुत सारे इदारे निकलेंगे, तो जाहिर बात है उसमें शिकायत आएंगी और उसके लिए हमारा कंप्लेंट सेंटर है, ये 051-111-327-000 ये हमारा नंबर है। तो इसमें हम उसका असाला करेंगे। जो वीडियो वाली बात थी ये बिल्कुल गलत थी, ये ऐसी कोई बात नहीं थी और उसकी फिर हमने बाकायदा तरदीद भी की है। तो आवाम से भी गुजारिश है कि उसमें ना आए। काफी सारी चीजें फेक चलती हैं, फेक आर्डर्स आज कुछ हुए हैं, उसकी भी हमने तरदीद की है। तो ऐसा नहीं है, मीडिया के अपने सोशल मीडिया के अपने नुकसानात हैं। हारून हम साहब, फेस जैसे आप इस खबर की तरदीद कर रहे हैं ना, इस तरीके से हमने देखा कि जब आपने खुद ही बात की कि जब घर में एक शादी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं बदनज़मी हो जाती है। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर हमने देखा है कि इतनी बड़ी आबादी का ये मुल्क है, हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो अमले की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास नफरी वगैरह कम होती है, तो वो जो अमला हायर किया गया है पर डे के हिसाब से, उसमें से बहुत सारे लोगों की तादाद तो ऐसी है जो वाकई, जैसे ये बात कर रहे थे साथ के, उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो आपको लगता है कि वो सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे इतने बड़ी तादाद में आवाम को? नहीं, देखें जी, अमले दो किस्म के हैं। अमले दो किस्म के, एक होता है पोलिंग अमला, जिसमें होता है उसका हर पर प्रिजाइडिंग अफसर, फिर सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, फिर पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, फिर तो ये वो होता है पोलिंग अमले। और एक होते हैं सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, जिसमें हमारे पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो हमारे अपने उसके टीयर्स हैं। तो ये दो चीजें हैं। तो हमारी जो है ना, हर तरह से इनकी हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है। मैं उस खबर की तरदीद कर चुका हूं। मैंने कहा कि ऑफिशियल इसकी तरदीद हो चुकी है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो आज चली थी कि कोई अमला चौकीदार या जो भी उसकी थी उसकी हम वीडियो बनाई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग खबरें फैलाते रहते हैं। मैंने कहा कि आज कुछ ऑर्डर्स भी, कुछ लोगों को आज डिस्क्वालीफाई भी कराया गया, जिसका हमने टाइमली रिबेटल कराया। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो ग्रेड 17 और अबाव के ऑफिसर्स हैं, और वो मोस्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे जो एग्जीक्यूटिव के हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लिए गए हैं। और ये 14 लाख का मामला है। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई ना मामला है और ना ऐसी कोई बात है कि उनकी तरबियत नहीं हुई। अच्छा, मुसलसल हारून साहब, जैसे साथ आपसे भी बात करूंगी, हम लोग देख भी रहे हैं कि पिछले दिनों, अब उसकी भी आप तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं हारून साहब, कि हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ वीडियोस आती हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, या इस तरीके से वीडियोस आ रही हैं। तो हम देखते भी हैं जब भी इंतखाबात होते हैं तब इस तरह के वाक़यात होते हैं कि जो भी अमला वहाँ पर मौजूद होता है उनकी तरफ से भी जो है वो आवाम को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जा रहा होता है। अगर इस तरह की वीडियोस आती हैं तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन लेगा? उसमें पूरा हमारा मीडिया विंग है, हमारा सोशल मीडिया विंग है। हमारे पास आज भी पिमरा को हिदायत गई हैं। पिमरा जो है उनका जो कंट्रोल रूम है उन्होंने कायम कर दिया है। हमारी निगाहें हैं ऐसी जो भी कोई आएगी कि जिसको प्रेशराइज किया जाएगा। अभी तक जो है मैं आपको बता दूं कि 26 दिसंबर से हम ऑन है ये कंट्रोल रूम्स, और अभी तक हम 625 कैंडिडेट्स और दीगर को हम जो वो लोग जो ज़ाब्ते इखलाक के खिलाफ वर्जी में थे, यानी जो चेयरमैन, तहसील चेयरमैन, जिला चेयरमैन वो कैंपेनिंग कर रहे थे, उनको हमने नोटिस इश्यू किए हैं। 200 जुर्माने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के पास 550,000 रुपए जुर्माने लगाने की वायलेशन पे पावर्स हैं। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस आए हैं, 252 वार्निंग इशू हो चुकी हैं। और अभी आप देखेंगे कि ये सारे जो हैं अपने मंतकी अंजाम तक इन सारे केसेस को हम पहुंचाएंगे। और इसको जो भी उसके कल्प्रिट्स होंगे, जो मैं पिछले 30 दिनों की बात कर रहा हूँ। जहां तक पोलिंग डे की बात है, कल तो बड़ा हसास दिन है। कल ऐसा जो भी करेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा और इलेक्शन कमीशन won't hesitate to take legal required action immediately. अच्छा हारून साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हमने आज दिन भर खबरें भी देखी, सुना भी हमने कि कहीं कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक जो है वो सामान पहुंचा नहीं है, ताखीर का शिकार हुआ है। इसकी वजह क्या है और कितना टाइम लगेगा कि तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो तमाम तर सामान पहुंच जाए और कल के इंतखाबात के लिए हम लोग मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं? देखिए, मेरी बात सुन ले। ये जो सामान पहुंचने का अमल होता है, आप बास पोलिंग स्टेशंस
ऐसे होते हैं कि 6-7 घंटे 12 घंटे उनका रास्ता होता है। तो हमारे लिए ये कोई ताखीर नहीं है। ये हम मेरा 27वां साल है इलेक्शन कमीशन में, बहुत सारे इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के जनरल में करा चुका हूँ, तो दिस इज वेरी नॉर्मल। ये रात 11-12 तक ये सारे हो जाते हैं और हमारे लिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। हम सबके साथ कनेक्टेड हैं और ऐसा कोई इशू नहीं है। यही तो मैं सारा कह रहा हूँ कि कंसर्न है शायद आप लोगों को इस सिलसिले में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये पूरा सिस्टम ऑन है, पूरी इदारे ऑन है और हम प्रॉपर राब्ते में हैं। अपने वक्त पे सारे पोलिंग स्टेशन जो 90,500 अराउंड है वो सारे इस्टेब्लिश हो जाएंगे, उसके लिए पूरा सिस्टम है जी, कोई ताखीर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हारून शनवारी साहब, जो कि हमें ब्रीफ कर रहे थे कि किस तरीके से जो है तर मामलात होंगे। अब मुझे आप साथ एक बात बताइएगा, जैसे बात भी कर रहे थे कि नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है, आपको लगता है कि चीज़ें बेटर होंगी? देखें, माजी में तो जो टेक्निकल सपोर्ट ली गई है वो कामयाब नहीं हुई है इंतखाबात के अंदर। हमेशा से मैनुअल तरीके से ही इंतखाबात हुए हैं और चाहे वो फ्री एंड फेयर हो या वो धांधली ज़्यादा हो, तरीक़ेकार वही रहा। 2018 में आरटीएस सिस्टम आया, बड़ी धूम मची कि जनाब अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है और फिंगर टिप पर आपका वोट है, पर वो भी हमने देखा कि सारा सिस्टम बैठ गया और धांधली का धांधला भी हमें देखने में आया बहुत सारी जगह पर। इस बार जो ईएमएस ये लेकर आए, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू दैट आरटीएस सिस्टम। ये एक अलग चीज है, ये एक आप इसे कह लें सपोर्टिंग व्हील है कि जनाब बस थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। आपका सारा प्रोसीजर मैनुअल होना है, पर ईएमएस से ये हो जाएगा कि वो एट द एंड सारा कंपाइल हो जाएगा एक जगह पर और वो शो होता रहेगा जो इनका कंट्रोल सेंटर बना हुआ है वहां पर। जो हल्के हैं वहां पर भी जैसा इन्होंने बताया कि जनाब स्क्रीन वगैरह लगी होगी, जो फॉर्म 45 होगा, जो हमारे पास जिसकी तस्वीर पहले आ जाया करती थी मोबाइल पे, अब वो ये होगा ये कि वो मोबाइल की तस्वीर उठाकर पहले वो सिस्टम पे जाएगी तो वो बाहर स्क्रीन पर फॉर्म 45 की तस्वीर आ जाएगी, जो कि फिर अल्टीमेटली फॉर्म 47 के अंदर जो है वो आगे आरओज उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक सपोर्टिंग भी साथ ही आप अभी बात कर ही रहे हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम भी अपने नाजरीन को देते चलें कि जमाते इस्लामी का इंतखाबात से कबल धांधली और बेज़ाब्तगियों के हवाले से सूबाई इलेक्शन कमीशन को जो है वो ख़त अरसाल कर दिया गया है। जमाते इस्लामी के इलेक्शन सेल के इंचार्ज राजा आरिफ सुल्तान ने इंतखाबात से कबल धांधली और बेज़ाब्तगी के हवाले से सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के नाम जो है वो ये ख़त जारी कर दिया है। NA 238 और PS 102 के पोलिंग स्टेशन में सामान पहुंचा तो इसमें से बैलेट पेपर्स के 10 बॉक्स गायब थे। लिस्ट के मुताबिक 30 बुक्स लिखी हुई थी, जबकि थैले फटे हुए थे और अंदर 20 बुक्स मौजूद थी। जिला शर्की NA 238 और PS 102 पोलिंग स्टेशन नंबर 269 गौसिया डिस्पेंसरी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोहम्मद शकूर की जानिब से RO को तहरीरी इतला की गई है। इस बारे में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में धांधली और बेज़ाब्तगियों के मरतकब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान जमाते इस्लामी, इंतखाबात से कबल बैलेट पेपर्स की बुक्स का गायब हो जाना इंतखाबात की शफाफियत पर जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जमात इस्लामी का इंतखाबात से कबल धांधली और बेज़ाब्तगी के हवाले से सूबाई इलेक्शन कमीशन को जो है वो ख़त इरसाल कर दिया गया है। ये शाइस्ता वही बात है जो मैं 6 बजे वाली ट्रांसमिशन में कर रहा था और अभी भी हम यही बात कर रहे थे। 2-3 चीजें ही हैं कि जिसके जरिए धांधली होती है, दिस इज वन ऑफ देम। तो ये जो बैलेट पेपर्स या बुक्स जो गायब हो गई हैं, ये पिछले अभी जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें भी यही हुआ था। पर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये धांधली ज्यादा असरअंदाज नहीं हो सकती क्योंकि ये पकड़ी गई। एक तो यही पता चल गया, हो सकता है कि जैसे भी शनवारी साहब बता रहे थे कि सामान की तरसील में कुछ ताखीर हो जाती है, हो सकता है ये सामान आ भी जाए और ये थोड़ा सा शायद जल्दी का मामला हो, पर अगर ऐसा है भी कि जैसी खबर है तो उसके बावजूद भी वो बुक्स गायब करने का कोई फायदा नहीं होगा। जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनको मालूम है कि जनाब हमारे पोलिंग स्टेशन में जो बुक्स हैं उनकी तादाद ये है, नंबर 1 से लेकर नंबर फलाने तक उसकी
जो है वो क्वांटिटी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हाईलाइट हो गई है, इसको मजीद देखने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे साथ हम ये बात कर ही रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी यही कहा गया था, हारून शनवारी साहब भी यही बात कर रहे थे कि जीतने वालों ने कभी ये शोर नहीं किया कि धांधली हो रही है। हमेशा हारने वाला उम्मीदवार या हारने वाली पार्टी ये क्लेम करती है कि धांधली हुई है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि सिर्फ जीतने वाली जमात को पता होता है या उसको होता है कि हाँ धांधली हुई है लेकिन चलो मेरे हक में हो गया है फैसला तो अब मैं क्या ही शोर करूं, या आपको लगता है कि शोर करना चाहिए? शायद जो जीत रहा होगा वो क्यों शोर करेगा, और जो हार रहा होता है तो वो यही समझ के शोर करता है कि जनाब जीत मेरी थी पर जितवा किसी और को दिया है। तो धांधली तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी कौम जो है ना साथ, वो हेल्दी कंपटीशन के लिए अभी तक जहनी तौर पर हम तैयार नहीं हुए। वो जो कहते हैं ना एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है कि चलो कोई नहीं, हमने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन नहीं जीत पाए, वो वाली हमारे अंदर वाली साइकी अभी तक आई नहीं है। हाँ, ये ऐसा होता है। उसकी वजह ये कि बहुत से हलके ऐसे होते हैं या बहुत से हलकों के अंदर पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जहां पर वाकईतन जेन्युइनली कांटे का मुकाबला होता है, और वो कांटे का मुकाबला ना हजारों में ना सैकड़ों में, सिर्फ जो है वो 10, 12, 20, 50 की तादाद में होता है। ऐसे भी हल्के पोलिंग स्टेशंस मौजूद हैं। अब इन हलकों और इन पोलिंग स्टेशंस में ना आपकी वाली बात के उस स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, पर हारने वाला करता नहीं। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है एक दफा दोबारा से जो है वो रीकाउंटिंग करा ली जाए, क्या पता 10, 12, 50 वोट जो हैं वो बढ़ जाएं और हम जीत जाएं। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक। सिटी 21 पर इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ मुझे बताइएगा, ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, हम उस पर बात नहीं कर पाए, धमाका हुआ, उसके बाद अभी हमने देखा कि धांधली के लिए जो है वो खत इरसाल कर दिया गया, ऑलरेडी बुक्स जो हैं वो गायब हो गई हैं। क्या देख रहे हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं? मामला तो देखें, अभी जैसा कि वो शनवारी साहब भी कह रहे थे कि इवेंट बहुत बड़ा है, और जब इवेंट बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखना ये होता है कि उन मसाइल को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, उनको फेस किस तरीके से करेगी। यकीनी तौर पे हमारी इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन कह लें, सिक्योरिटी के इदारे कह लें या गवर्नमेंट कह लें, तमाम इदारों को मिलकर इन चीज़ों को देखना होता है ना। अब ये खबरें जो अभी आई हैं शाइस्ता, मैं तो समझता हूँ कि अभी ये खबरें शायद उतनी बड़ी फिर भी सामने नहीं आई, क्योंकि कल आप ये देखें 13 करोड़ लोगों ने, तकरीबन 13 करोड़ लोगों ने वोट डालने निकलना है। तो बहुत बड़ा दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये दिन अच्छे तरीके से गुजरे, साथ खैरियत से गुजरे। हाँ, अभी जो ये गुलशन इकबाल लीमू गोट वाला जो वाकया हुआ है, देखिए हम 6 बजे की ट्रांसमिशन में भी मैंने हारिस नवाज साहब को भी, वजीर दाखिला साहब को भी यही कहा कि जो सदर में जो देसी साख्ता बम का धमाका हुआ था, अगरचे उससे कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, पर इट्स अ थ्रेट कि जनाब आप रिस्क पर हैं और कोई भी आपको तंग करने के लिए वो अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है। तो आपने इस मामले को हल्का नहीं लेना, जिस पे उन्होंने मेरी बात को सेकंड भी किया और उन्होंने कहा कि वी टुक इट वेरी सीरियसली। तो जनाब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये अभी लीमू गोट वाला वाकया जो है, जिसपे हमने अभी सिटी 21 ने इस पे बड़ी ज़बरदस्त कवरेज की है, और मैंने देखा कि हमारे कितने नुमाइंदे वो तमाम इनकी खबरों पे लगे हुए थे, बशमूल हमारे ब्यूरो चीफ। तो इस तरह के वाकयात को अगर हम अभी से रोकथाम इसकी करना शुरू कर देंगे, तो अगर ऐसे कोई शरपसंद अनासिर पीछे कोई प्लानिंग करके बैठे हुए भी हैं तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे साथ हम ये बात कर रहे हैं ना कि चले ये छोटे मोटे वाकयात हो रहे हैं, वैसे हम तो उस ज़माने में भी हमने सफ़र किया है या हमने वक्त भी गुजारा है जब हमारे सामने बड़े बड़े धमाके हो जाया करते थे, कितने कितने लोग शहीद हो जाया करते थे, और हम सिर्फ चैनल चेंज कर देते थे कि अच्छा फिर धमाका हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये वाली चीज़ें बड़ी मामूली लगने लग गई हैं, क्योंकि हमें सवाल है धांधली वाला, तो हमें लगता है अच्छा ये बहुत मामूली चीज़ है, अभी तो हम इंतज़ार करें कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा किया जाएगा तो फिर हम बात करेंगे। आपको लगता नहीं है कि जैसे ही चाहे छोटा है लेकिन आपको वहीं पर जो है रुक जाना चाहिए, वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे कड़े इंतजामात कर देने चाहिए कि कोई नुकसान आगे बड़ा ना हो? बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हमने मतलब कराचीआइट्स ने तो वो दौर देखा है कि उनके लिए ये सदर जो बम धमाका है ये तो शायद कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि यहाँ तो एक दौर वो था कि काउंटिंग होती थी, मतलब कि आज इतने लोग चले गए, आज इतने लोग चले गए, तो ये तो कोई मायने नहीं रखता। पर जिन लोगों के लिए मायने रखता है ना, वो आम आवाम नहीं है,
میں اگر ہم لوگ اپنی بھی بات کریں جو ان چیزوں پر دیکھتے ہیں اور کسی اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں, عام آدمی کی نظر سے صرف نہیں دیکھتے ہیں, اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی آپ کی لمٹس کے اندر, آپ کے بارڈر کے اندر کہیں سے بھی داخل ہوتا ہے تو چاہے وہ 1 قدم ہو یا 1 کلومیٹر ہو تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کو وہیں روکنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک باؤنڈری وال لگائی ہوئی ہے نا کہ جناب یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نے چاروں طرف گیٹڈ کیا ہوا ہے, لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں, جوان کھڑے ہیں ویپنز کے ساتھ. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی شخص چاہے ایک معمولی پٹاخہ ہی پھاڑ دے تو وہ آپ کے لیے تھریٹ, اور اداروں کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ گولی ایک چلی ہے یا گولیاں چلی ہیں, ان کے لیے جو واقعہ ہوتا ہے اسی کی امپورٹنس ہوتی ہے. اچھا, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر انتخابی مہم کی بات کی جائے, ساتھ مجھے بتائیے گا کہ تمام تر پارٹیز کی جانب سے جو ہے وہ انتخابی مہم چلائی گئی. پرسنلی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی پارٹی ہے یا کون سے ایسے سربراہ ہیں جنہوں نے ایک اچھی انتخابی مہم چلائی ہے؟ بلدیاتی انتخابات سے لے کر اب تک جماعت اسلامی اس میں سر فہرست ہے, وہ اس وجہ سے کہ ماضی میں انہوں نے کبھی اس طرح کی کیمپین نہیں چلائی. اس دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل برڈن بھی ان کے اوپر کافی آیا ہوگا, جس طریقے سے انہوں نے میڈیا, سوشل میڈیا اور گراؤنڈ پر اپنی کیمپیننگ کی ہے, تو ان کی کیمپیننگ ہمیں کچھ اچھی نظر آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے تھوڑا دیر سے پیس پکڑا, پر انہوں نے بھی آخر میں اپنی کیمپین اچھی چلا دی تھی. پر ایم کیو ایم کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ پاور شوز نا بڑے کم ہوئے ہیں اس دفعہ, کوئی ایسے تگڑے پاور شو نہیں ہوئے جو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی بڑے جلسے اور بڑی کوئی ریلیز. تو یہ ہے کہ ابھی بلاول نے ریلی نکالی تھی, تو یہ وہ بھی بس آپ سمجھے نا کیمپیننگ اینڈ ہونے سے تھوڑی ایک آدھ دن پہلے ہی انہوں نے نکالی. ایم کیو ایم نے یہ ہے کہ انہوں نے 2-3 جلسے کیے اور انہوں نے بھی اپنا پاور شو دکھایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تینوں جماعتیں ہیں نا, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شاید پیرالل ہو کر ہی کیمپیننگ کی ہے, کوئی بہت زیادہ کسی سے آگے نہیں نکل گیا. اچھا دیکھیں, کل انتخابات ہیں, اس کے بعد ایک پارٹی جیتے گی, باقی ایک پارٹی ہوگی جو اپوزیشن میں ہوگی, ملا جلا سا کچھ حکومت بنے گی. مجھے بتائیے گا ساتھ پرسنلی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کافی دفعہ اپنے آپ کو کویسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے یا ہم کسی کو غصے میں ہی صحیح کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب اگر سیاست دانوں کی بات کی جائے تو ہم نے دیکھا, جیسے بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیان آیا کہ انسان مطلب چونکہ اب انتخابی مہم چل رہی ہے, ایسا نکل جاتا ہے منہ سے, اس کو دل پر نہیں لینا چاہیے, صرف اسی نظریے سے لینا چاہیے کہ انتخابی مہم ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے پر تیر برسا کے, الزامات کے اور پرسنل بھی, اور اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد ساتھ میں اتحاد کر لیا جاتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے جو ابھی بات کہی نا, انہوں نے بڑی سادگی اور معصومیت کے ساتھ سچائی سے بات کہہ دی ہے. حقیقت یہی ہے کہ دیکھیں, آپ کسی ایک پولیٹکس بھی ایک ان کے لیے جو ان کی فیلڈ ہے, تو اس میں وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب آپ کسی سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کہیں تھوڑا بہت تو جو ہے وہ آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. اگر آپ پروفیشنل کسی ادارے میں بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں, آپ کے کولیگ جو ہیں, پر آپ پروموٹ ہونے کے لیے تھوڑا ایفرٹ تو کرتے ہیں نا, اس کو بتاتے ہیں کہ جناب اس سے بہتر میں ہوں. پر ہماری یہاں تھوڑی سی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ یہ کمپٹیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے, جوش خطابت کی حد تک کچھ جو ہے وہ نشتر چلا دینا وہ تو ٹھیک ہے, پر جوش خطابت میں بہہ کر ایسی باتیں کہہ دینا کہ جو 10 سال کے بعد بھی پھر میڈیا آپ کو نکال کر آپ کے سامنے رکھے کہ جناب آپ نے تو وہ لیمٹس کراس کر دی تھی کہ جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں تھا. اچھا, پھر ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے, تو پھر انہیں شرمندگی ہوتی ہے شاید. ہاں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ پھر میڈیا کا تو کام ہی ہے, تو وہ پھر بعد میں جو ہے وہ میڈیا کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں میڈیا کا تو کام یہی ہے, اس نے ہماری 20 سال پرانی کلپ جو ہے وہ نکال کے جو ہے وہ چلا دی ہے, پر ہمیں شرمندہ کیا جا رہا ہے. خیر, ہم جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। सिटी 21 की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। हमने जब इस इलेक्शन ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था तो हमने यही सोचा था कि कराची के तमाम तर हलके जो मौजूद हैं उन पर किस तरीके से जो है वो चीज़ें हो रही हैं, आवाम की क्या राय है, उम्मीदवार क्या राय रखते हैं, किस तरीके से जो है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होगा। हमने देखा कि बहुत कुछ हुआ, उसके बाद इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो है अपनी जानिब से भरपूर कोशिशें की, सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो भी हरकत में आ गए हैं। देखा यह जा रहा है कि तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। साथ मेरे साथ मौजूद है, साथ लास्ट वर्ड्स इलेक्शन से कुछ घंटे पहले क्या कहना चाहेंगे आप, क्या लग रहा है आपको? देखें, मैं तो लग तो बहुत कुछ रहा है, पर मैं सिर्फ कहना इतना चाहूँगा कि अब कल आखिरी दिन है, मतलब आने वाला जो दिन है, तो जो सियासी जमातों को भी थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना होगा, आवाम को जोश से काम लेना होगा। उनको तहम्मुल से काम नहीं लेना होगा, उन्होंने जोश और जज्बे से काम लेना होगा, घर से निकलना होगा, वोट डालने के लिए जाना होगा। और जो इलेक्शन कमीशन जो इस बात का जिम्मेदार है कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने, उसने ज़रा अपनी कोताहियों पर और अपने माजी पर नज़र करके इस बार थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालने होंगे। आप देखें कि ठीक है आपने ईएमएस बना दिया है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज एक जगह से मोटरसाइकिल चोरी हो गई और वो सीसीटीवी में ब्लर आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं ताकि आपके जो मैन पावर है उसको सपोर्ट मिल सके ना। तो आपने इलेक्शन कमीशन ने जरा अपना बड़ा फाल और मुतहरिक किरदार अदा करना होगा। कल उन्होंने खास तौर पर, मैं आपको बताऊं शाइस्ता, कि ये जो कैमराज है ना, ये इतने काम की चीज़ है कि ये हर वक्त कोई आपको देख रहा है, तो इसको बड़ा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और खुदा मतलब उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि ये जो इनका ईएमएस सिस्टम है ये भी कल अच्छा चलता रहे, इसकी कनेक्टिविटी कहीं इंटरप्ट ना हो, तो ये सारा काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। और रही बात सिक्योरिटी की, मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन जो है वो फोर्सेस ग्राउंड पर होती है। हमारी लोकल पुलिस होती है, बैकअप में रेंजर्स होती है, और फिर हमारे पाक फौज के जवान, वो जब उतरते हैं तो एक बड़ी ढारस होती है हर उस आदमी को जो वोट डालने आ रहा होता है कि जनाब मेरी रखवाली करने वाला कोई है। सिर्फ सिक्योरिटी का मामला वोटर का नहीं होता, उस अमले का भी होता है जो वहां पर ड्यूटी दे रहा है कि उसकी भी हिफाजत करनी है। अब जैसे लीमू गोट में या कराची सदर में ये जो वाकयात हुए हैं, या पशीन में जो आज हुआ है, इससे तो फिर आपको सबक लेना है ना। और आपने कल का दिन बसूरत दीगर के कोई आपकी तरफ से कोताही ना हो, तो मैं नहीं समझता अपनी तरफ से, वो कहते हैं ना कि ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश यही की जानी चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर से बेहतर हों। जैसे साथ बात कर रहा था, साथ की ही बात को मैं सेकंड करूंगी कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने जब सिक्योरिटी के इंतजामात देखे या सिक्योरिटी की बात की, जब भी बात की यही कहा गया कि हमें फ्रंट पर जो है वो पुलिस मिलेगी, हमें सेकेंड नंबर पर हमारे पास रेंजर्स मौजूद है, एंड हमारे पास थर्ड लेयर जो है वो मिलिट्री की है। यानी कि अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उस पर हम 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, करना भी चाहिए। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए, हमने देखा कि इससे पहले भी इंतखाबात हुए, बहुत बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ भी हुई, कहीं कहीं बहुत अच्छे इंतज़ामात भी हुए। इस दफ़ा भी कोशिश की गई कि सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, थोड़ा सा डिजिटल हुआ जाए, ताकि जो है वो जो भी परेशानियाँ हैं या जो भी प्रेशर है उसको कम किया जा सके और चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। ज़ाब्ता इखलाक का भी एक पूरा वो कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पास आया कि किस किस चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, अगर आप ये करते हैं तो इस पर आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम पार्टीज़ की बात की जाए तो तमाम पार्टीज़ ने जो है वो भरपूर मुहिम अपनी चलाई, कहीं कहीं कोई पार्टी पीछे रह गई, कोई किसी पार्टी ने जो है वो ज़्यादा नंबर ले लिए, लेकिन ये जो है ये आज का दिन तय नहीं करेगा, ये कल आवाम के हाथ में है। आवाम तय करेगी ये कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को बेहतर बनाना है। यही अपील कर रहे हैं जब से इस ट्रांसमिशन में बैठे हैं, और आज आखिरी बार एक दफ़ा फिर से यही अपील करेंगे कि कल का दिन है, फैसले का दिन है, वोट एक कौमी फरीज़ा है, आप सबको घरों से बाहर निकलना है, जाकर अपना वोट कास्ट करना है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, चाहे जितनी भी परेशानियां हों। अगर आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, मायूसी है, कुछ भी है, आपके पास एक इख्तियार है और वोट जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो 8 फरवरी यानी कि कल बाहर निकलें, बाहर निकल कर अपना वोट कास्ट करें, ताकि जो है आप सुरखरू हो सकें और अगले 5 साल आपके पास ये मौका हो कि आप उन उम्मीदवारों पर या उन पार्टीज़ पर तनकीद कर सकें जो अपने बड़े बड़े मंशूर लेकर, बड़े बड़े दावे और वादे लेकर हमारे सामने आए थे।
میں ہوں شائستہ رضا، سٹی 21 کی الیکشن اسپیشل ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت۔ میرے ساتھ پینل پر سعد صابری موجود ہے، بہت بہت شکریہ۔ سٹی 21 کے بیورو چیف فہیم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے ہمیں بہت ساری چیزوں پر گائیڈ کیا کہ کس طریقے سے چیزیں ہوں گی، کس طریقے سے چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب کل کے دن دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔